Okay, so very good afternoon to everyone. Now we have with us uh, Dr. Vikas Singh ji from Central University of Jammu, who is working at the Center for Comparative Religions and Civilizations, School of Humanities and Social Sciences. Welcome back, sir. We are very glad to have you amongst us again. You have been connecting with us for quite some years now, and we have as chair, respected Professor Chandan Bhattacharya sir, who has very kindly consented to chair this session. I have to speak a few words about our speaker for the session, Vikas ji, although I'll definitely not waste any time because he has definitely more interesting things to say. Vikas ji was honored with the Sanskrit Samaradhak Shikshak Samman by the Delhi Sanskrit Academy, and he has his expertise in interpreting Indian knowledge traditions and religion in contemporary contexts, encompassing Indian philosophy, culture, and literature. Actually, I have to say, in with reverence, that if I am to go on reading his entire CV, it will probably take as long a time as for a paper presentation, but I will have to add few more things. He has delivered lectures on various aspects of Indian religion and philosophy in numerous countries, including Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Mongolia, Burma, Japan, and others. He has disseminated India's rich cultural heritage globally. We are proud to have you amongst us, sir. And he has presented over 150 research papers at national and international conferences. He has published over 50 research papers and organized over 15 national and international conferences while chairing and coordinating 15 seminars in various seminars in India and abroad. He is also the editor-in-chief of Kusi Nara, an international biannual peer-reviewed research journal. He is also the author of 4 books, and he has been supervising 3 PhD researchers, including our very own Somnath Da. So now I hand over the session to our respected speaker, and I'll request Professor Chandan Bhattacharya to be the chair. So over to you, Vikas ji. Thanks again for joining us. Vikas sir, you are on mute. जी थैंक यू। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चंदन सर, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और देवदत्त जी, सोमनाथ जी, और आपका माणिकचक कॉलेज बहुत ही ख्याति लब्ध कॉलेज है और इस तरह के अकादमिक वातावरण को आप लोग जीवंत बनाए हुए हैं, उसके लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। और क्योंकि आज के समय हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो जानना भी जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो आरंभिक स्रोत हैं, और ये देखिए कि भारत एक विशाल और विस्तृत भूभाग है। उत्तरे यत् समुद्रस्य मादृश्येव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम भारते यत्र संतति। इतना विशाल भारतवर्ष हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भी विस्तृत फैला हुआ विशाल भूभाग है, जिससे कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक का हमारा विस्तृत भूभाग, और आधुनिक सीमाएं हैं जो पंजाब से लेके और मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश तक देख रहे हैं। वरना तो एक ऐसा भी समय था कि ये भारतवर्ष जो आज के 10 देश हैं वो मिला के भारतवर्ष बनता था। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और बर्मा, इतना विशाल भारतवर्ष हुआ करता था। तो उस विशाल भारतवर्ष में बैठकर हम उस भारतीय ज्ञान संपदा, ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें प्राचीन भारत में 3 त्रिविध धाराएं त्रिपथगा के रूप में डेवलप होती हैं। हालांकि बहुत सारी धाराओं का उल्लेख हमें पाली ग्रंथों से मिलता है, जिसमें दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूक्त है, जहां 62 दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख हमें मिलता है,
जिनमें से कई सारी चीजें समय के साथ खत्म होते चले गए और कुछ चीजें उनमें से बची। तो कुल मिला के हमारे पास हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीन पार्टियां जो आज के समय जीवंतता लिए हुए हैं और वहीं से हमारी धाराएं निकलती हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा के जब आरंभिक स्रोतों की बात करें तो चंदन सर ने अभी एक वक्तव्य दिया, उसमें बहुत सारी चीजों की उन्होंने चर्चा की है। जो संस्कृत स्रोतों पर विशेषकर उनका फोकस था, 14 विद्याएं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का हमारा कोष है, जिसे हम आधार कह सकते हैं, वो 14 विद्याएं हैं। और 14 विद्याओं को आप 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, अनुचिकी और धर्मशास्त्र, इन 14 विद्याओं को भारतीय जो पूरा वाङ्मय है, उस वाङ्मय को भी हम दो भागों में अगर बांट के देखें तो एक तो इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इंडियन क्रिएटिव ट्रेडिशन, एक जहां क्रिएटिव राइटिंग्स हो रही है, एक नए तरह का साहित्य लिखा जा रहा है और कालजयी साहित्य लिखा जा रहा है, और जो एक इंटेलेक्चुअल हमारी प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इस 14 विद्याओं को हम रखते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग में हमारा दृश्य, श्रव्य और चंपू, ये जो काव्य आते हैं, जिसमें हमारे महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, नाटक के भेद ले लीजिए, उसके अवान्तर नाटिकाओं के भेद ले लीजिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजों की चर्चा हम क्रिएटिव अपनी जो ट्रेडिशन है उसमें करते हैं। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी हम स्पेशली देखें तो 4 वेद बड़े स्पष्ट रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेदों में मंत्र इत्यादियों का संकलन है, संहिता भाग के रूप में उनको देखते हैं। तो वो वेद जो है आरंभिक स्रोत है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने का। उनके माध्यम से हम देखते हैं कि वेदों में आर्यंस के धार्मिक रिचुअल्स का उल्लेख मिलता है, किस तरह से वो लोग यज्ञ करते थे, विधि विधान करते थे, अग्निहोत्र होम इत्यादि करते थे, तो उसकी विधियां उसमें उल्लेखित हमें वेदों में मिलेंगी। देवों का उल्लेख मिलेगा, किन किन मंत्रों का हम लोग उच्चारण करते हैं, किसी मंत्र, किसी देव के लिए किस तरह से हम अग्नि की स्तुति करते हैं, इस तरह की चीजें भी हमें जो आरंभिक दौर के वैदिक मंत्र साहित्य भाग है उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो वेद हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आरंभिक स्रोत है। और हम ये लोग मान के भी चलते हैं कि जो कुछ वेद में लिखा हुआ है उसी का लगभग विस्तार भारतवर्ष में आज तक जो भी साहित्य रचना हुई है, सब या तो वेद के फेवर में या वेद के खिलाफ में भी जो भी परिपाटी हमारे यहाँ विचार आया वो भी उसी तरह से ही डेवलप हुआ। तो और दूसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण ग्रंथ अलग ग्रंथ होते हैं जो ब्रह्म विद्या से रिलेटेड ग्रंथ हैं। उसके बाद आरण्य ग्रंथ आते हैं जो अरण्य में पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद उपनिषदों की चर्चा आती है। उपनिषदों में आचार्य शंकर ने भाष्य भी लिखा। बहुत सारे उपनिषद हैं जो गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय ज्ञान पर पार्टी का जो एक दार्शनिक पल्लवन है वो उपनिषदों में होता है। और इन चारों वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना की गई। तो ये भाग अपौरुषय भाग के रूप में है। और पौरुषय भाग के रूप में पुराण, मीमांसा, आनविच्छिकी और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के लिए आप ग्रहण सूत्र, सुलभ सूत्र और ये जितने भी ये और भी चीजें, स्मृति ग्रंथ वगैरह धर्मशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आजकल काफी चर्चा में है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई सारे ग्रंथों को धर्मशास्त्र के पत्रों से हटाया है। और मीमांसा आप लोग जानते हैं, मीमांसा के भी हमारे यहाँ 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को अद्वैत वेदांत और जितनी भी वाद की परिपाटियां उनके रूप में देखा जाता है। 18 पुराण हमारे यहाँ हैं जहाँ सर्गश प्रतिसर्गश वंशमनंत्राणी च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम, जो पुराणों की परिपाटी है जहाँ पर प्रलय, विनाश, महाप्रलय, राजाओं का चरित्र और वंशों का वर्णन मिलता है, वो पुराण ग्रंथ कहलाते हैं। तो मैं आपका जो फोकस है वो लेके जाना चाहूंगा आनविच्छिकी की ओर। आनविच्छिकी जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और भारतीय जो दर्शन है वो आनविच्छिकी के अंतर्गत आता है। इसे हम तर्क विद्या के रूप में भी जानते हैं। और आनविच्छिकी को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। जो भारतीय दर्शन है उसके भी यही 2 भाग हैं। ज्यादातर अगर मोटी दृष्टि से समझने के लिए जो हम शब्द यूज करें तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन के रूप में यूज करते हैं। तो नास्तिक दर्शन पूर्व पक्ष के रूप में देखा जाएगा और आस्तिक दर्शनों को उत्तर पक्ष के रूप में देखा जाएगा। हालांकि ये जो विभाजन है वो एक दुराग्रह पूर्वक है कि नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक को वेद निंदक और
इस तरह की एक पंक्ति मिल जाती है और उसके आधार पर हम नास्तिक आस्तिक का वर्णन कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दर्शन का जो विभेदीकरण या वर्गीकरण है वो इतना आसान नहीं है कि उसको हम बड़े सरल और सतही शब्दों में दो तरह से बांट दें। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा सुंदर टर्म जो आन्वीक्षिकी यूज किया गया भारतीय दर्शन के लिए, और इन सारे 9 दर्शनों को उपांग के रूप में देखते हैं। उपांग कहते हैं, उपांग मतलब ये भी वेद के सहायक अंग है, वेद की सहायता करते हैं, वेद की व्याख्या करने की बात करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वेदांत जो है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, तो वेदांत वेद के उपनिषद की व्याख्या करता है। और मीमांसा मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम देहम, मंत्र और ब्राह्मण जो संहिता पाठ है और उसके साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी व्याख्या करते हुए वो वेद शब्द की व्याख्या अपनी आगे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार ये उपांगी है, ये भी उन्हीं चीजों की वैशेषिक दर्शनी तद वचनात् आम्नायस्य, वो भी उसी की व्याख्या कर रहे हैं। सारे के सारे जो दर्शन है आस्तिक दर्शन वो वेदों की ही व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए इनको उपांग के रूप में हमने देखा। और भारतीय ज्ञान परंपरा में ये 4 वेद 6 वेदांग और 4 आपके ये जो अपौरुषेय ग्रंथ है पुराण मीमांसा आन्वीक्षिकी धर्मशास्त्र आन्वीक्षिकी को उपांग के रूप में हम देखते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है। और ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ कि अभी इनमें हमने बहुत सारी चीजों को समन्वित नहीं किया। हमारा आर्ष काव्य रह गया, और आर्ष काव्य के बाद जो काव्य की परिपाटियां हैं वो भी एक लंबी ट्रेडिशन है। तो अब बात करें कि जब वो नॉलेज की बात होती है तो नॉलेज का जनरेशन कैसे होगा उसको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार ज्ञान है क्या है। ज्ञा धातु अवबोधन के अर्थ में आती है, और ज्ञान केवल उतना भर नहीं है कि हमें आता है, इसको आता है, या 4 अक्षर वगैरह पढ़ने से भी है। कई बार हम ज्ञान की परिपाटियों को भी देखेंगे तो भारतीय परंपरा में किताबों में लिखी हुई बातें ज्ञान की परिधि में नहीं आती हैं। हमारे यहाँ तो श्रुति परंपरा है, हम ओरल ट्रेडिशन के देश हैं, मौखिकी के देश हैं, और उस मौखिक परंपरा वाले देश में जो ज्ञान की बात हो तो वो थोड़ी अलग ढंग से होगी। और न्याय दर्शन में अगर आप जाके देखेंगे, ज्ञान को सर्व व्यवहार हेतुर गुण बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि का पर्यायवाची ज्ञान के रूप में देखा गया है, और सभी व्यवहार का हेतु ज्ञान है, उसी से सारा व्यवहार चलता है। और ये जो व्यवहार है कहीं ना कहीं एक भाषा में हमें संकल्पित करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होगी। और उस भाषा में कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बड़ी रिच ट्रेडिशन डेवलप होती चली जाती है, और उसी ट्रेडिशंस की ओर हम लोग अपना फोकस करते हैं। अगर आप लोग देखें तो हम दर्शनों में भी देखें कि 6 दर्शनों की चर्चा इन्होंने पूरी तरह से हमारे यहाँ पर की जाती है। न्याय और वैशेषिक बेसिक समझेंगे कैसे वो अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्या क्या करते हैं। न्याय दर्शन बड़े सरल, सहज, वास्तविक, यथार्थवादी जो दर्शन है वो न्याय और वैशेषिक दोनों को मानते हैं। तो न्याय क्या करते हैं कि पूरी ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया को एक अस्तित्व में है, अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व, पदार्थ सामान्य लक्षण, ये हम मान के चलते हैं कि ये संसार अस्तित्ववान है, और जो चीज अस्तित्व में है उसका नामकरण किया जा सकता है, और जिसका नामकरण किया जा सकता है उस चीज को ज्ञेयत्व जाना भी जा सकता है। तो न्याय उसको 16 पदार्थों में पूरी दुनिया को देखने की चर्चा कर रहे हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्व ज्ञाना, निश्रेयस, अधिगम। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो न्याय दर्शन का जो ज्ञान है वो अल्टीमेटली निश्रेयस की प्राप्ति हमें कराना है, और उसके लिए उन्होंने 16 पदार्थ बताए। वैसे वैशेषिक दर्शन धर्म की व्याख्या से आरंभ होता है कि था तो धर्मम व्याख्या से आमहा, और फिर वो बोलती भी हैं ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है वो धर्म कहलाता है। और फिर उस धर्म विशेष प्रसूताद, उस धर्म विशेष से उत्पन्न धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम साधर्म वैधर्माभ्युगम तत्व ज्ञान निश्रेयस अधिगम। उस धर्म विशेष से प्रसूत द्रव्य गुण कर्म सामान्य
समवाय, ये 6 पदार्थ। और 8वीं 9वीं शताब्दी में शिवादित्य हुए, उन्होंने एक और पदार्थ वैशेषिक में जोड़ दिया, अभाव। तो 7 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। सांख्य और योग, तो सांख्य 25 तत्वों को मानता है, पंगु और अंधु की भांति प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, और इस सांसारिक सृष्टि को 25 तत्वों में हम समझ सकते हैं। योग उसमें एक तत्व एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ईश्वर। और बोले ईश्वर भी वो सामान्य ईश्वर नहीं है योग का, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा मृष्ट पुरुष विशेषाश्च ईश्वरा, कि वो क्लेश कर्म से रहित है, विपाक अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब होता है रहित, उसका अभाव होना, उन सारी चीजों से रहित है। फिर एक मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन जो है कि वेद की व्याख्या करता है, यागादिरेव धर्म, वो भी धर्म की व्याख्या करता है, अर्थात वो धर्म जिज्ञासा, स्टार्टिंग वो भी करते हैं, अर्थात वो धर्म जिज्ञासा को धर्म को बताते हैं, धर्म आखिर क्या है, यागादिरेव धर्म, उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया कि जो यज्ञ इत्यादि है वो कर्म धर्म है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो ही धर्म, फिर उन्होंने धर्म को और ज्यादा डिफाइन किया। तो वो अलग अलग तरह से मीमांसा के भी 2 स्कूल डेवलप हुए, भट्ट संप्रदाय और प्रभाकर संप्रदाय। अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, इसे पूरी सृष्टि को माया में मानकर अल्टीमेट जो रियलिटी का कॉज है वो ब्रह्म को मानते हैं, और उसी के अनुसार वो व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म सिद्धि की ओर जाते हैं। और 3 हमारे जो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज हैं, नास्तिक जिन्हें बोल रहे हैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, हमारे पास में और भी श्रवण परंपरा एक शब्द है, और उपांग के रूप में पूर्व पक्ष ज्यादा बेहतर शब्द है। तो चार्वाक दर्शन भौतिकवादी मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, और वो इस सांसारिक जगत में जो भी सेंसरी ऑर्गन से आपको दिखाई जा रहा है उसी चीजों को मानते हैं, उसके अलावा वो मानने की ओर आगे भी नहीं बढ़ते हैं। और कई तरह की चीजों का खंडन मंडन भी वो उस तरह से करते हैं कि हर चीज इस तरह से नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो एक इस तरह का एक माइंड सेटअप है। चार्वाक दर्शन अपनी फिलॉसफी दे रहा है। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, दोनों ही श्रवण परंपरा के दर्शन हैं। तो जैन दर्शन जो है वो आचार परक, ये दोनों दर्शन आचार परक है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जैन में जैसे अहिंसा का सिद्धांत है, हिंदुइज्म के बाकी दर्शनों में अहिंसा दर्शन है, पर जैन में अहिंसा जीवन पद्धति है। उनके अहिंसा पर केवल हमें तात्विक विमर्श नहीं करना है, अहिंसा को जीना ही जैन हो जाना है अपने आप में। तो वो केवल दार्शनिक बात बन के नहीं रह जाएगी कि अहिंसा परमो धर्म, इतना बोलने से बाद में हिंसा की भी हम स्वीकारोक्ति ले आते हैं, परंतु यहाँ पे नहीं है। बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन एक अलग तरह का दर्शन है, और उस दर्शन में हर चीज जो है क्षणिकवाद पर टिकी हुई है, अनंतवाद पर टिकी हुई है, दुखवाद पर टिकी हुई है। तो इनके अपनी अपनी परिपाटियां हैं दर्शनों की भी, और वो दर्शन जो है जो ज्ञान अल्टीमेट निकल रहा है, और ज्ञान हमारे यहाँ वही कठोपनिषद वाला ज्ञान है जो नचिकेता 2 वरदान तो मांग लेते हैं, और तीसरा जो वरदान मांग रहे हैं वही ज्ञान की बात है, और वही भारतीय ज्ञान है। बस उसको कहने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। अल्टीमेट हमें एक घड़ी पर अगर आप सोचेंगे, वेदांत और बौद्ध एक जगह पर खड़े हुए नजर आएंगे कि बस एक ने इसको ब्रह्म कह दिया और एक ने उसको शून्य कह दिया। शून्यवादी जिसे शून्य की चर्चा कह रहे हैं, और वो भी अवांग मन से गोचर है, उसको वाणी से आप मन से जान नहीं सकते हैं। तो ब्रह्म और शून्य भी आपको एक हो जाएंगे, न्याय वैशेषिक एक हो गए, सांख्य योग एक हो गए, समान तंत्र के रूप में भारत में दर्शन डेवलप हुए। और आज के समय तो सारी चीजों को मिला के, क्योंकि अब परिपाटियां तो उस तरह की जीवंत परंपराएं किसी भी दर्शन की बची नहीं है भारत में। तो आज ये हमारा दायित्व भी है कि भारतीय जो साहित्य है, और विशेषकर दार्शनिक साहित्य, उसको पढ़कर उसमें निहित जो ज्ञान परिपाटी है उस ज्ञान को आगे बढ़ाना हमारा देह होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा साहित्य में और बात करेंगे कि ये मैंने थोड़ा आपको एक रफ आइडिया दिया। तो संस्कृत की परंपरा हमारे पास है ज्ञान की, जिसमें चंदन सर बड़े विस्तार के साथ में चर्चा किए हैं। मैं आपको 2 चर्चाएं, एक इस पे करता हूँ पाली वाले साहित्य परंपरा पर, प्राकृत वाली साहित्य परंपरा पर भी हम देखें, वो भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत हैं।
पाली के जो पिटक साहित्य बोलते हैं और पिटक जो त्रिपिटक लिटरेचर है, कैनन लिटरेचर बोलते हैं, बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है वो तीन है, दीघ निकाय और सॉरी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है मॉन्क्स जो लोग होते हैं, भिक्षुणियां जो भिक्षु जो लोग होते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस की चर्चा है कि भिक्षु को कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उसको भिक्षाटन के लिए जाना चाहिए, इत्यादि चीजों की चर्चाएं विनय पिटक में हो। विनय पिटक को दुनिया का पहला संविधान कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने पहली बार इस तरह की चीजें आरंभ की थी। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक भगवान बुद्ध की डायरेक्ट देशनाएं हैं और ये भी 5 भागों में बटा हुआ है, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय। और इसमें खुद्दक निकाय को भी देखेंगे तो उसके भी बहुत सारे थेर गाथा, थेरी गाथा, धम्मपद, पदान, पट्ठान, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक इत्यादि ग्रंथ वहां पे आते हैं। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो सम्राट अशोक के समय में इसको जोड़ा गया, कंखा वितरणी, विभंग, पट्ठान, 7 ग्रंथ, कथावत्तु 7 ग्रंथ उसमें आते हैं। इनके अलावा भी लिटरेचर लिखा गया, उसे अनपिटक साहित्य बोलते हैं। अनपिटक साहित्य जो है पूर्व बुद्ध घोष, बुद्ध घोष और बुद्ध घोषोत्तर। बुद्ध घोष एक बड़े स्कॉलर हुए पाली साहित्य के, तो उनके आधार पर उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। और उसमें मिलिंद पहिये, नैति पक्क पक्करण, पैटकोपदेश, 3 ग्रंथ हमें बुद्ध घोष से पहले के समय में मिलते हैं। और बुद्ध घोष ने इन्हीं पाली साहित्य जो मैं आपके सामने त्रिपिटकों का नाम लिया, इन त्रिपिटकों पर उन्होंने कमेंट्रीज लिखी। उन कमेंट्रीज को हमारे यहाँ तो परिपाटी है संस्कृत में, सूत्र, भाष्य, वार्तिक, टीका और व्याख्या, और उसके बाद प्रकरण ग्रंथ लिखने की हमारे यहाँ परिपाटी रही। पर बौद्धों ने जो परिपाटी को स्वीकार किया, सूत्र शैली में ग्रंथ बहुत कम या ना के बराबर मिलते हैं। हमारे एक न्याय बिंदु ग्रंथ इस तरह का मिलता, बाकी सूत्र शैली में ग्रंथ नहीं लिखे गए। जो भी साहित्य लिखा गया, दिग्नाथ का प्रमाण समुच्चय पे प्रमाण वार्तिक मिल जाएगा, उस पर टीकाएं मिल जाएंगी और प्रकरण ग्रंथ भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पाली में अट्ट कथाएं लिखी गई। अट्ट कथाएं अर्थ, अट्ठ मतलब अर्थ, अर्थ का प्रकाशन करने वाली कथाएं। जो छुपा हुआ अर्थ था कि बुद्धा ने कोई भी चीज कही, कब कही, कहाँ कही, कैसे कही और क्यों कही, इन सारी चीजों को उत्तर में अट्ट कथाओं में मिलता है। त्रिपिटक तो मूल है, उस मूल के साथ में एनालिसिस हमें सबसे ज्यादा अट्ट कथाओं में मिलता है। तो बुद्ध घोष ने सभी त्रिपिटक के ग्रंथों पे अट्ट कथाएं, उनके साथ धम्मदत्त ने, बुद्ध घोष ने, बुद्ध पाल ने, 3 लोगों ने लिखी। और उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा इत्यादि में पाली की जीवंत परंपरा आधुनिक पाली साहित्य में देखने को मिलता है। बहुत सारा लिटरेचर उसका लिखा हुआ भी हमें मिलता है। और इस बीच में जब इस लिटरेचर के साथ में जो वज्रयान का लिटरेचर आता है, अपभ्रंश साहित्य और संस्कृत का मिश्रण उस समय हो रहा था। आपके यहाँ पे आज आपने चर्यापाद ग्रंथ का नाम सुना होगा। चर्यापाद जो ग्रंथ है वो वज्रयान बुद्धिज्म का ग्रंथ है। आचार्य सरहपा ने धोआ अभिधर्म कोश लिखा, कण्णपा हुए, चमरपा हुए, लुडपा हुए, ऐसे करके 84 सिद्ध हुए। 84 सिद्धों ने वज्रयानी बुद्धिज्म का लिटरेचर क्रिएट किया, वो ज्यादातर अपभ्रंश भाषा में। तो हमने संस्कृत की परिपाटी को देखा, पाली की परिपाटी को थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया, हम थोड़ा सा वज्रयान की ओर आए तो अपभ्रंश को भी जाना। और अपभ्रंश से होते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में हमारे तक विद्यमान है। वो बंगाली की परंपरा हो सकती है, बंगाली में भी पूरा का पूरा ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ, हर ग्रंथ का ट्रांसलेशन हुआ, चाहे वो पंजाब की हो, राजस्थानी की हो, या फिर आपके हमारी जितनी भी उत्तर भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में, या साउथ इंडियन भाषाओं में भी उन सारी चीज़ों को लिखा गया, उनका ट्रांसलेशन किया गया, उनकी व्याख्या की गई। तो ये है कि जो हमारे सोर्सेज हैं आज के समय भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के, वो इतने विशाल और विस्तृत हैं कि अब हमें हर परिपाटी में, हर भाषा में ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। और जो अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे उन पर भी काम चल रहा है। सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट इन चीज़ों पे दिए जा रहे हैं, जिससे कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा वो दोबारा से निकल के आए और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास था, भारत अवबोध की ओर हम लोग जागृत हों और हम पुनः भाति में भारतम, भा माने होता है ज्ञान और रत माने संलग्न, उस ज्ञान में संलग्न देश की ओर पुनः अग्रसर हो सकें।
तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा जो साहित्यिक परिपाटियां हैं, उन साहित्यिक परिपाटियों को पढ़ने की, समझने की, गंभीरता से हमें जानने की और आगे बढ़ना है। और जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ें तो हमारे पास एक दृष्टि होनी चाहिए। आप लोग लकी हैं, आपकी तरफ चंदन भट्टाचार्य जैसे विद्वान सर हैं जो इस संस्कृत की साहित्य परंपरा को अनवरत आगे बढ़ा रहे हैं। सर से आप लोग अच्छे ढंग से मार्गदर्शन लें और इन चीज़ों को और भी आगे से समझें। सोमनाथ जी भी समझ रहे हैं, देवादित्य जी आपके साथ में हैं, तो वो इतने अच्छे ढंग से चीज़ों को रखते हैं। तो आप उन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ाएं। और आपने मेरे को समय दिया, माणिकचक कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्रिय छात्र सोमनाथ जी, देवादित्य जी, और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चंदन सर जी, सभी को मेरा एक बार प्रणाम और नमस्कार। So the presentation of Dr. Vikas Singh ji, so nicely you have presented. Your topic was sources of Indian knowledge system. That's true. You have pointed out many things in the field of Indian knowledge system, including Indian creative tradition, intellectual tradition, Veda, Brahmana, Aranyak, Upanishad areas, Vedanga tradition, like this. You have also mentioned the Indian philosophical traditions, where you have nicely mentioned the 6 systems of Nastika Darshana and 3 systems of Nastika Darshana, that is Nyaya Vaisheshik, Sankhya Yoga, Mimamsa Vedanta, and Charvak, Jaina and Bauddha. You have raised many issues like Shruti Parampara, oral tradition, which is most established tradition in our system, and the means of liberation, that is moksha, how we can reach in the moksha. You have stated that the 16 categories of Nyaya system, that is Pramana, Prameya, Samshaya, these will be the true knowledge of these 16 padarthas will be the means of liberation. Also, you have rightly pointed out the Pali literature. Perhaps this is the main, this is the special area of yourself. Whatever I know, that you have mentioned Gatha, Nikaya, Tripitaka, etc. Lastly, I congratulate you, Dr. Singh, for nicely presenting your paper and sharing the new thoughts in the field of Indian knowledge system. Actually, I know you since few years, even met in this Manikchak College, where we have met today. And especially, I also would like to congratulate for this good news, which you have joined before a few months ago, your new academic journey in Jammu Central University. So congratulations is due to you, and I think this academic gathering will find out many paths, many ways to solve our many problems through the discussion with this Indian knowledge system. Once again, I would like to give thanks to the organizers, basically Somnath, Devaditya, Somaresh, and others. Thank you very much. With these few words, I am concluding this session, and
I over to you, Somnath. ধন্যবাদ স্যার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। বিকাশ স্যারকেও ধন্যবাদ। স্যার এসেছিলেন আমাদের কলেজে, অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে বিশেষ করে ভারতীয় যে জ্ঞান পরম্পরার যে বিভিন্ন দিক, অজস্র দিক রয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরেছেন। আশা করি যারা শুনলেন এবং তারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন এবং বিভিন্ন দিকগুলো ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ বিকাশ স্যারকে এবং চন্দন স্যারকে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি তাহলে বেরোই, সোমনাথ। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে। স্যার এবার আমাকে আবার একটু ইয়ে করতে হবে, সুতপা সেনগুপ্ত। আচ্ছা, এই দুগুলো একসাথে এসছে। হ্যাঁ, আশ্চর্য সমাপতন ঘটলো, মানে শান্তিপনি বাবু এবং সুতপা ম্যাম একসাথেই জয়েন করেছেন। তো আমি পরবর্তী সেশনের সেপারেট রেকর্ডিং এর জন্য, নমস্কার শান্তিপনি বাবু, নমস্কার সুতপা ম্যাডাম। নমস্কার।